Today's topic is elimination reaction. Now basically a elimination reaction is a reverse of addition reaction. Okay, now in case of addition reaction, if you remember, you see this addition reaction across C double bond C, C triple bond C, C double bond O and all, in which some molecules have been added across the double bond or triple bond and convert this unsaturated compound into a saturated compound. Okay, like हम लोग ने halogen ऐड कर दिया. If you add HX or you add H2O across the double bond, so you get H here and OH here. H2O मैंने ऐड कर दिया across the double bond, etc. So when you add HX or add H2O across the double bond, you get a saturated product. Okay. Now elimination reaction is the reverse of addition reaction. The reverse of addition reaction means if you remove this HX or you remove this H2O, once again you get the unsaturated compounds. So in case of elimination reaction, first thing you need to remember that a saturated compound is converted into unsaturated. Normally alkenes में आप इसको देख रहे हैं reactions को, or it can be alkynes and all, unsaturated compounds. Second thing, how it works. So let us try to take an example and try to understand what is elimination reaction, a general reaction. Suppose we took a hydrocarbon, a saturated hydrocarbon, where there is a group present on this carbon atom. Now this group can be a halogen group, so it becomes alkyl halide. It can be an alcoholic group, OH, so it becomes an alcohol. It can be a diazonium group, so it becomes a alkyl diazonium compound, etc. Suppose these groups are present here. So this carbon which is attached to the main functional group, अगर यहाँ पर OH present होगा तो this compound will become an alcohol. So now OH will become the main functional group. So this L group is basically the main functional groups, and the functional group attached to the carbon atom is called as alpha carbon atom. And alpha carbon से जो carbon attach है वो है beta carbon atom. And suppose beta carbon atom के यहाँ पर एक hydrogen है. Clear है? उसके बाद में जो कार्बन आता है उसको हम लोग गैमा बोलते हैं. उसके बाद जो कार्बन आता है इट्स कॉल्ड एज डेल्टा एंड सो ऑन, ओमेगा. तो ऐसे कार्बन आटम्स को हम लोग रेंज करते हैं, बट यू नेम इट विद रिस्पेक्ट टू द मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच टू अ पर्टिकुलर कार्बन आटम. ठीक है ना. नाउ इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, इफ यू रिमूव अ ग्रुप फ्रॉम द अल्फा कार्बन आटम and a hydrogen, mostly a hydrogen atom, smaller atom, from a beta carbon atom to a leaving group and a hydrogen has been eliminated. Now note properly, these leaving groups are electronegative atoms, so it will take away its electron pair with itself, and your H plus will be removed along with this, so LH is removed and this electron pair shifts between alpha and beta and it gave rise to a double bond system. So such reactions are called as elimination reactions, and this group L group now it will be called as leaving group. और इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको लिविंग ग्रुप के बारे में बताया था, स्पेशली इन केस ऑफ सेन-1 रिएक्शन लिविंग ग्रुप का एक ऑर्डर दिया था. ठीक है. तो दिस इज बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन वेयर अ ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम अल्फा एंड फ्रॉम बीटा. But if in case, now this type of elimination will be called as what? Alpha beta elimination. But suppose अगर ऐसा हो रहा है, happening like this, कि H and a group is removed from the alpha carbon atom, अगर यहीं से ही निकल जाए अगर ये group, so now this will be called as alpha elimination only, not alpha beta elimination. Clear है? अच्छा, ये कहाँ देखने को मिलता है? दिस इज सीन मोस्टली इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स, बट हम लोग अभी वो उसको देखेंगे नहीं, हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब ये लिविंग ग्रुप L माइनस यहाँ से निकलता है विथ H प्लस, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा इट विल हैव 2 कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन इट. ओके, एंड ऑलरेडी एक 4 वैलेंसी में था, सो इट हैज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट, बेसिकली कॉल्ड एज कार्बीन,
हम लोग बाद में देखेंगे इसको. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. सो यू अंडरस्टूड व्हाट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन. केस ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन there is one leaving group which is present in the alpha position, and along with that it will be more electronegative atoms attached to the carbon atom with respect to leaving group, so it will take away this electron pair along with itself, and from the adjacent carbon atom, that is beta carbon atom, H plus ions has been removed and the electron pair shift inside. That is why we call it that alpha beta elimination reaction. So alpha beta elimination reaction में एक सैचुरेट कंपाउंड को हम लोग अनसैचुरेट कंपाउंड में कन्वर्ट करें. अगर वो दोनों से निकलेगा तो उसको हम लोग अल्फा ही एलिमिनेशन बोलेंगे. इट्स वेरी रेयर. अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन. ओके, नाउ अल्फा बीटा एलिमिनेशन के टाइप्स होते हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन is divided into three types. First is called as E1, okay, capital 1. Second, it will be E2 elimination, and third it will be called as E1 CB. तो तीन टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन है, E1, E2 एंड E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन. अच्छा, ये तीनों भी एलिमिनेशन रिएक्शन किसको बिलोंग करते हैं? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन. क्यों? बिकॉज आप फर्स्ट अल्फा पोजिशन इज द फर्स्ट पोजिशन, जो आपका पेरेंट कार्बन होगा उसमें अल्फा पोजीशन फर्स्ट पोजीशन होता है एंड बीटा विल बी सेकंड पोजीशन. सो इट इज काइंड ऑफ 1-2 एलिमिनेशन और अल्फा बीटा एलिमिनेशन. तो ये तीन टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन है बेसिकली. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ E1 E2, कैसे ये वर्क करता है. इसको थोड़ा सा हम लोग, नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अल्काइल हैलाइड. सब लोग, मैंने यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिया है CX, ये इसका एडजेसेंट कार्बन H हो गया, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया. ओके, ये तीनों में ये एग्जांपल लेता हूँ, ईजी है समझने के लिए. नाउ इफ यू टेक एन अल्काइल हैलाइड वेयर योर लिविंग ग्रुप इज X हैलोजन, E1 follows SN1 type of mechanism. SN1 type, if you remember, SN1 is two-step reaction. Two-step reaction मतलब first step there is a formation of carbocation which is very slow step, and second step there is a attack of a nucleophile. याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? तो it is somewhat similar to SN1 which is basically two step. तो यहाँ पर भी वैसे ही वर्क करेगा. इसके फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन पेयर X पे चले जाएगा, तो X माइनस यहाँ से निकल गया, ड्यू टू विच दिस कार्बन विल फेस डेफिशिएंसी एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन एट द अल्फा पोजीशन, एंड दिस स्टेप विल बी योर स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. SN1 में याद आ रहा होगा. फिर उसके बाद में देयर विल बी अ फास्ट सेकेंड स्टेप. इन दैट सेकेंड स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. इन केस ऑफ सेकेंड स्टेप, which is a fast step, this electron pair from the beta position shift inside and H plus will be removed from here. So H plus will be removed and it result into the formation of a double bonded compound. Okay, it's a two-step reaction. First step is a slow step and second step is a fast step. Now E2 mechanism जो है, अगर मैंने ये लिया तो E2 mechanism will behave like little bit, the mechanism behave like an SN1. If you remember, sorry, SN2. If you remember, SN2 is a one-step reaction where there is a formation of a transition state in between. तो मतलब ये सबसे पहले which is a slow step formation एक transition state होगा. ओके, इसके transition state में partial bond formation होता है. If you remember in SN1, तो यहाँ पर भी partial bond formation चालू हो जाएगा. And finally what will happen? The X and H will be removed simultaneously, निकल जाएगा उसके अंदर, and it result into the formation of H भी निकल गया और X भी निकल गया. तो now it result into the formation of C double bond C. So एक वन स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ. इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है उसमें कार्बोकैटायन बनता है, फिर एक और एक ट्रांजिशन स्टेट होता है, याद होगा. SN1 में 2 स्टेप है, 2 वन स्टेप रिएक्शन. अब सपोज इफ आई टेक दिस एग्जाम्पल ऑफ डिस्कशन HC,
यहाँ पर x लिया है मैंने. Now what will happen in this example? सबसे पहले there will be a loss of H plus ions from the beta position. मतलब सबसे पहले स्टेप में यहाँ से कौन निकलता है? H plus ions. तो when H plus ions is removed, the entire electron shift on the beta carbon atom. So यहाँ पर formation of carb anion होता है. Now this X group, a halogen group, or it can be oxygen OH group, basically behaves as a minus I. अगर कोई यहाँ पर एक minus I group है, electron withdrawing group, तो वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा एंड द एंटायर इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट इनसाइड इन द सेकंड पोजीशन. तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप निकल गया यहाँ से एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन. सो दिस इज हाउ E1, E2 एंड E1 CB. अभी इसे E1 क्यों कहते हैं? उसका रीज़न ये है बिकॉज योर द रेट ऑफ द एंटायर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. अब हम लोग ने यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या यूज़ किया है? RX. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस यू हैव यूज्ड RX. E2 मैकेनिज्म इसको क्यों कहें? बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट एज वेल एज द रिएजेंट जो इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा. नॉर्मली इस रिएक्शन में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं. वी यूज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर दिस रिएक्शन. बेस से याद आया, आपको याद होगा Lewis base are those substances which are electron pair donor. मैंने न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के वीडियो में बताया है. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, वीक बेस भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक उसमें सिखाया था कि स्ट्रॉन्गर दी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, वीकर कॉन्जुगेट बेस को याद होगा. मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3OH, a methanol, okay, if I write down suppose I write down ethanol, C2H5OH, HOH, water, then I write down ammonia, okay, and I write down HF. तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ बोलूँगा तो HF is more acidic than ammonia, ammonia is more acidic than water, water is more acidic than ethanol. बट इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्जुगेट बेस, तो किसी भी एसिड का बेस कैसा बनाते हैं? उसका प्रोटॉन निकालो, बिकॉज एसिड कैन गिव अवे इट्स प्रोटॉन. तो अगर मैंने इसका प्रोटॉन निकाला तो C2H5O माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, क्योंकि H प्लस निकला, इलेक्ट्रॉन N पे रह जाएगा. HF में से H प्लस निकलेगा तो F पे इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, F माइनस. नाउ दीज स्पीशीज फॉर्म हैज़ अ कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. सो ये बेस बन गए, कॉन्जुगेट बेस बन गए, लिविस बेस बन गए. और आपको फंडा याद है, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस. मतलब HF स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा. क्लियर है? तो आप जब स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर जो बेस है, देखो मैंने उसको ऐसा डिनोट किया है, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर. क्लियर है? यहाँ पर भी देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हियर इट हैज़ इलेक्ट्रॉन पेयर, सी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दे आर लोन पेयर डोनर्स. तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करोगे तो वो E2 मैकेनिज्म पे जाएगा. बट इफ़ यू यूज़ अ वीक बेस, वो भी बेस कहाँ यूज़ होगा? SN1 के अंदर इन द सेकेंड स्टेप. वीक बेस लाइक आपने वाटर यूज़ कर लिया, लाइक आपने इथेनॉल यूज़ कर लिया, ठीक है, लाइक आपने मीथेनॉल यूज़ कर लिया. तो ये सब आपके वीक बेस हो गए. लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हो, जैसा CH3O माइनस, C2H5O माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हो तो इस केस के अंदर वो क्या फेवर करता है? नॉर्मली E2 मैकेनिज्म. और E2 मैकेनिज्म, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंट, दैट इज अल्काइल हैलाइड हम लोग ने लिया, हम अल्कोहल भी ले सकते हैं. एंड ऑल्सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेस विच यू आर यूजिंग. बिकॉज आप बेस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, RX का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करो, चेंज हो जाएगा. तो E2 डिपेंड्स अपॉन बोथ. और याद रखना, दोनों मैकेनिज्म को कैरी आउट करने के लिए यू रिक्वायर व्हाट? अ बेस. E1 के लिए एक वीक बेस चाहिए, E2 के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए. E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस आपको फर्स्ट स्टेप, और वो एक ही स्टेप का रिएक्शन है. और E1 के लिए आपको जो वीक बेस चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड इन सेकेंड स्टेप. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दीज एलिमिनेशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर. मतलब अगर आप हीट सप्लाई नहीं करोगे तो ये रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा. तो बेसिकली दीज ऑल रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, यू नीड टू हीट देम. और नॉर्मली आपको इसको कितना हीट करना होता है? यू हैव टू हीट अबव 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. मतलब समझ लो 60 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप इसको हीट करोगे. सो यू हैव टू हीट इट.
60 डिग्री सेल्सियस 333 केल्विन के ऊपर इसको आप हीट करोगे तो नॉर्मली ये रिएक्शंस फॉलो करेगा। तो बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शंस है ये सब। फर्स्ट इज इन even mechanism, it is a two-step mechanism. The entire rate of the reaction only depends upon the substrate. E2 mechanism is one step. The entire rate of the reaction depends on the substrate as well as the base. यहाँ पर जो आप बेस यूज़ करते हो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ पर जो आप बेस यूज़ कर रहे हो वो वीक बेस है ना। अब ये इवन CB क्या होता है? इवन CB स्टैंड्स फॉर द कॉन्जुगेट बेस। देखो अगर मैंने यहाँ पर RX लिया था, दिस इज एन RX, सब में मैंने RX ही यूज़ किया, तो इन केस ऑफ दिस मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन H+ आयंस। सी प्रॉपर्ली, आपने यहाँ पर एक प्रोटॉन निकाल दिया, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करके प्रोटॉन निकाला। व्हेन द प्रोटॉन इज बीन रिमूव, द अल्फा कार्बन एटम हैज़ अ -I ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल करेगा। तो इफ द -I इफेक्ट योर इंक्रीजेस, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फास्टर स्टेप, मतलब रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा जितना अच्छा माइनस होगा। क्यों? इफ़ यू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन शिफ्ट इनसाइड, एंड ये पॉसिबल है, इजीली हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर एक ऑर्बिटल होता है, दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। CX में एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। दिस आइडिया इज कमिंग फ्रॉम वेयर? नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, इफ यू रिमेंबर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो इस अनायन के, देखो यहाँ पर कार्ब आयन बना है, कार्ब आयन के इलेक्ट्रॉन पेयर को पैरेलल हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट पुलिंग इट इनसाइड। ओके, एक टाइप का अट्रैक्शन होता है, बिकॉज यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे शिफ्ट होने वाला है? -I। तो यहाँ थोड़ी डेफिशिएंसी होगी, तो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल स्टार्ट पुलिंग दिस इलेक्ट्रॉन, और फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाएगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव बाय द -I ग्रुप। तो इसका मतलब है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, और ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर में एक प्रोटॉन कम है इसी प्रीवियस स्ट्रक्चर से। अब मुझे बताओ कि इन दिस केस RX ने फर्स्ट स्टेप में क्या डोनेट किया? प्रोटॉन। अ सब्सटेंस विच प्रोडक्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड एज व्हाट? एसिड। तो ये इसका एसिड हो गया। तो एसिड में से अगर प्रोटॉन निकलता है उसका तो क्या बनता है? उसका बनता है कॉन्जुगेट बेस। तो योर द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्जुगेट बेस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, क्योंकि जितना अच्छा कॉन्जुगेट बेस होगा, जिसमें उतना अच्छा -I होगा, वो उतना जल्दी ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और आपको याद होगा स्ट्रॉन्ग -I से कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्ट्रॉन्गर द -I इफेक्ट, ग्रेटर विद द स्टेबिलिटी एंड ease with the reaction. The reaction becomes very easy and more product will be formed. So you have to analyze कि if I talk about अभी तक के जो हम लोगों ने देखा कि E1, E2 and E1 CB all three are endothermic, ठीक है। फिर E1 जो है इज सिमिलर टू SN1 टाइप। तो अगर वो SN1 टाइप मतलब अगर उसमें शॉर्ट डिफ्रेंसिएशन, जस्ट टू, अभी तक हम लोगों ने इसको ओपन नहीं किया है कम्प्लीटली, ऐसी जस्ट टू रिवाइज इट, E1, E2 एंड E1 CB। तो ये तीनों भी एंडो होते हैं, और आपको पता है हीट इसमें 60 के अबव होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, तो ये नॉर्मली फॉलो करता है SN1 टाइप, तो इसमें 2 स्टेप रिएक्शन होता है, क्लियर है। इसमें भी जो कार्बन आयन बनेगा वो कार्बन आयन का सेकेंड स्टेप जो होगा, और E2 के अंदर इट विल बी 1 स्टेप रिएक्शन। अच्छा, इसके अंदर भी जो फॉलो कर रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? द रेट ऑफ द एंटायर रिएक्शन फॉर E1 CB डिपेंड्स अपॉन द कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट स्टेट जो सेकेंड स्टेप में है दैट इज स्लो स्टेप। तो यहाँ पर भी 2 स्टेप है, बट इसका आई राइट डाउन 2 स्टेप, बट हियर इन दिस केस इन 2 स्टेप फर्स्ट स्टेप इज स्लो, और यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप होता है वो स्लो होता है, याद रखने का। द सेकेंड स्टेप इज स्लो एंड योर इन दिस केस फर्स्ट स्टेप इज स्लो, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? कार्बोकटायन। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं, इसमें भी बनता है बट इसको ऐसा स्पेसिफाई कर रहे हैं, जहाँ पर पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या बनने वाला है? इट फॉर्म्स अ कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस इज बेसिकली द कार्ब अनायन। ओके, अब यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर इसके अंदर कार्बोकटायन बन रहा है
तो कार्बोकैटायन में सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है? आपको याद होगा ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल। सो हम लोग लिख सकते हैं, याद है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो मतलब यहाँ पर 3 डिग्री कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, लाइक SN1 रिएक्शन हम लोग ने उसका पूरा ऑर्डर देखा था, ट्राइफिनाइल, डाइफिनाइल, देन 3 डिग्री, फिर टर्ड ब्यूटाइल, फिर बेंजाइल, देन 3 2 1 एंड देन एंड में आ जाता है मिथाइल, और मिथाइल के बाद कौन आता है? विनाइल एलाइड। तो दिस विल बी द ऑर्डर सेम एज दैट ऑफ SN1 रिएक्शन। E2 में नॉर्मली स्टेरिक फैक्टर देखने को मिलता है, तो उसमें छोटे ग्रुप होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवली रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब बेसिकली हम E2 में बोल सकते हैं कि द स्मॉलर द अल्काइल ग्रुप ग्रेटर विल बी द रिएक्शन। बट अल्टीमेटली जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इसके अंदर SN1 में देखो या E1 में देखो, द ऑर्डर इज़ 3 2 1 इन मिथाइल, बट एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर भी जो ऑर्डर होता है इन E2, द ऑर्डर विल बी द सेम। द ऑर्डर विल बी 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। उसका रीज़न है द अटैक ऑफ बेस ऑन द बीटा कार्बन एटम, द H+ आयंस कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम दैट पोजीशन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 2 1 डिग्री है, इसमें भी 3 2 1 डिग्री है। तो हमारे सब सारे एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ज़्यादा वर्क करता है रिएक्शन के अंदर। सिर्फ SN2 मैकेनिज्म में 1 2 3 है, बाकी SN1 मैकेनिज्म, E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, सबके अंदर 3 2 1 जाता है ऑर्डर। मतलब एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर, एलिमिनेशन सेकेंड ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर, ये याद रखने का। इस सब के अंदर ऑर्डर यही जाता है 3 2 1 का। इंस्पाइट ऑफ दैट कि इसमें कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, फिर भी वो हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा है आगे, इन सी दैट। बट इसमें तो आपको इजीली समझ में आएगा कि कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल, दैट इज वाई द रिएक्शन प्रोसीड इस मैनर। एंड लास्ट थिंग, योर द रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली द सबस्ट्रेट, योर द रेट डिपेंड अपॉन substrate and the strong base, and here the rate is directly proportional to the conjugate base form in the reaction. तो बेसिकली अगर इन दोनों के बारे में बात करना है तो ये दो आइडिया क्लियर होनी चाहिए कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस का ज़रूरत, सॉरी यहाँ पर आपको एक वीक बेस का ज़रूरत पड़ता है, वो भी सेकेंड स्टेप में। और यहाँ पर आप स्टार्ट से ही एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दो। वीक बेस आप क्या ऐड कर सकते हो? वाटर ऐड कर सकते हो, मीथेनॉल ऐड कर सकते हो, इथेनॉल ऐड कर सकते हो, एंड सो ऑन। स्ट्रॉन्ग बेस you can add a strong base like alcoholic KOH, alcoholic NaOH. Then you can add more stronger base NaNH2 soda amide, KNH2, ये भी बेस आप ऐड कर सकते हो। फिर टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड स्टेरिकली हिंडर्ड बेस है, दैट R3CO- टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से बन सकता है ये। तो टर्शियरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं टर्शियरी। अगर ये दोनों जगह पे मैंने CH3 डाल दिया तो इट बिकम CH3 3CO-, दिस बिकम्स कॉल्ड एज टर्शियरी T ब्यूटो ऑक्साइड, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। सो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया जो यहाँ पर आप यूज़ करने वाले हो फॉर दिस टाइप ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर है? अब डिटेल में विल सी दी E1 रिएक्शन।